Hello everyone. Welcome to Dubito IAS, the official channel that I'm beginning to share content with all of you. This session is completely about the channel, orientation, purpose, and approach that I would follow. Number one, orientation. What is orientation? Because so far I have established and connected with my loving 150 peoples, those who have subscribed and shown tremendous support for this channel. Let's together we make it a deal. The purpose with which I started this channel is frustration. The frustration that I developed during watching some free content available on the YouTube. They are just rubbish. Mind it. I'm speaking it again. It is rubbish. There is 0%. I am saying it again, 0% knowledge, any new knowledge in it. Now, you will say that I am criticizing everyone, but no, accept the truth. Because what take any of the channel on YouTube, bearing some few, those who have shared some new knowledge about the subject, most of the channels are sharing just the mundane things. And that's very frustrating to me. Because for new learner, when someone orient to a new subject, let's suppose he is starting reading history, what he will learn? He will see some dates, kings, and some other facts. But that's history. But that person is sticking to particularly only on those facts. Is that only history? No, that is not the actual essence of reading history. History is something broader, more comprehensive. It is reading something new and gaining some knowledge is not at all a bad thing. If you will have a broad horizon of your mindset, then you will gain something very productive. Number one thing that you will gain from broadening your mindset is that you will have a vast experience of understanding in actual sense of history. Understanding history is important because dates, kings, they all change in history. But the actual essence is the understanding part because history is after all a understanding. Mind it, it's understanding, not what is truth, what will be the truth, just understanding. Understanding through various frameworks because there is always a debate because history is always controversial because some people find it to pointing the leftist historian that they have distorted the true picture of India and made history with their imagination. But that's completely wrong. It is wrong because when historians write history, it is written from a perspective, through frameworks, through rigorous analytical understanding of various events. So it is not like completely that historians shut and started writing on the history through their own imagination. That's completely wrong. Rather, rigorous analytical method, research, looking various disciplines and gaining understanding from other sources. It's a very detailed exercise of writing history. It's very systematic because yet
India is a diverse country, and in diversity, it's good. But there are also chances that whenever there is diversity, there is going to be a chaos. Chaos in the sense that there would arise dispute on the same fact. Let's suppose in diverse country where there is a diversity of historian from various background, so everyone tries to understand history from a different point of view. That perspective, I would call, is defined through its society in which one lives, through his upbringings, through his academics, and certain various other categories. So history cannot be objective or universal history, because there are various attempts. So in order to protect yourself from falling into the traps, I would say approach history just as an understanding and not as a truth seeking exercise. Because history is so beautiful that it always leads you to new insights. When you were a child, ask yourself, you tend to ask to parents when someone unfamiliar face came to your home. You basically tries to know from your parent who he was, why he was here, what he was doing, how the hell he came here. So these are the simple questions that you also do. But it all gets changed when the curiosity is killed in you. It is killed through family, society in which you live. So my whole purpose of starting this channel is to develop you again this lost skill in you, because it was always there in you. It is not something that I am teaching you here new. It was all there in you. But it's somehow lost because you left practicing it anymore. Your schools, teachers, and even the system failed to develop. Books will talk you about the critical thinking. Even the official and NCRT's books will talk about developing interdisciplinary approach. It's all because they want to emphasize that you should have diverse knowledge on a subject. They want you that you should discard the mugging, this rotting approach in learning history or knowing the subject. This is the purpose. And that's why I'm saying again and again and again that history you on YouTube or various any other subject, they will tell you everything about the subject. They will tell you every fact, but they will never delve into the why question. Why? एग्जाम्पल से समझते हैं इसे. हिस्ट्री में 87 की क्रांति हुई तो क्यों हुई? वही सारे मोटे एग्जाम्पल हैं. पॉलिटिकल रीजन, इकोनॉमिक रीजन, सोशल रीजन क्या है? बट दे विल नेवर इंक्वायर कि व्हाई these political reasons were there, why only that political reason happened, not other, why this economic issue become issues. लेकिन फिर भी अगर आप और जब आगे पढ़ेंगे, जिसको मैं हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूं, जैसे जैसे टाइमलाइन लीनियरली बढ़ती चली जाएगी तो नए पर्सपेक्टिव आपको आते जाएंगे. तो मेरा सोल पर्पस है कि मैं आपको हिस्ट्री ना पढ़ा के उसके जो लिंकेजेस हैं वो आपके डेवलप करा दूं, जिससे आप एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग रख सके. और इसके चलते आप जो है
रटेंगे नहीं कभी चीजों को, आप समझेंगे उसको, समझ कर पढ़ेंगे। ये मेरा चैनल का पर्पस रहेगा। तो इसी के साथ हम इस ओरिएंटेशन सेशन को इतना ही रखते हैं। देखिए अभी मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं यहाँ कौओं की दुनिया में अकेला हंस हूँ। तो इट्स थिंग्स लाइक, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मुझे जरूर बताएं। और हम जो है स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से, और हिस्ट्री में हमारी क्या अप्रोच रहेगी वो मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट होगा वाई से। कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं तो हमें पता तो हो कि हम क्यों कर रहे हैं। वाई, वाई दे, दिस थ्री लेटर वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट हर तरह से। अब मैंने अभी पीछे बोला जैसे कि आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग थी, है अभी भी, लेकिन आप उसको सही डायरेक्शन में अप्लाई नहीं करते हैं। आप हमेशा पूछते हैं, अब एक सवाल ले लीजिए, आपसे कहें कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, यही सवाल आता है आपके मन में, हम क्यों पढ़े, वाई, क्यों खाएं, वाई, क्यों सोए, अगेन वाई, क्यों दोस्त बनाए, अगेन वाई, वाई 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 वाई, एवरी टाइम वाई। आप सब पूछते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप सभी के अंदर ये स्किल है, सारी स्किल है, पर आप इसका सही जगह इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसे ही हिस्ट्री है। तो आप ये तो जान लें कि हिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं। वाई आर यू रीडिंग हिस्ट्री, क्या कोई बता सकता है मुझे। ठीक है, मैं मानता हूं सबसे यूजलेस सब्जेक्ट अगर है तो वो हिस्ट्री है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि सबसे बेनिफिशियल सब्जेक्ट है वो भी हिस्ट्री है। अब सर आप कहेंगे सर ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया आपकी बात में। यस, यही तो क्रिटिकल थिंकिंग है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहां मैं आपको सारे बताऊंगा। आप बैलेंस इसको खुद कर लीजिएगा। अगर मैंने यूजलेस बोला है हिस्ट्री को तो क्यों बोला है, उसका क्या पर्पस था, क्यों बोला है, कुछ तो कारण रहा होगा, ऐसे तो नहीं बोल दिया है मैंने। तो हिस्ट्री अगर यूजलेस है तो क्यों है, आइए जानते हैं। देखिए, आपने ये मैसेज सुना होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर। और हिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं, वॉर, प्लासी, बक्सर, हाइडेस्पस, खानवा, पता नहीं अनगिनत कहानी, वर्ल्ड वॉर्स, 7 ईयर वॉर्स, 30 ईयर्स वॉर। कौन कौन सी वॉर नहीं सुनी आपने, हर वॉर है। लेकिन अगर आप सीख क्या रहे हैं हिस्ट्री से, आज भी लड़ाई हो रही है, रशिया यूक्रेन वॉर, ईरान इजराइल वॉर, इंडिया पाकिस्तान की अभी कॉन्फ्लिक्ट हुई है, इंडिया भी लड़ाई लड़ चुका है काफी पाकिस्तान के साथ मॉडर्न टाइम्स में। तो फिर क्या बेनिफिट है अगर हम आज भी अगर लड़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ने का। तो इसलिए मैंने बोला कि ये यूजलेस है। बट ऐसा नहीं है मेरे ये कहने से कि ये यूजलेस हो गया सब्जेक्ट। ये एक पॉइंट हो गया है, ये एक पर्सपेक्टिव हो गया है, ये एक फैक्ट्स को उठा के मैंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है। क्या बस लड़ाइयां ही हिस्ट्री में हुई हैं, सोचो एक मिनट आप, क्या बस लड़ाइयां ही हुई हैं उसमें, और कुछ नहीं हुआ है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कुछ पॉजिटिव है ही नहीं हिस्ट्री में। तो फिर यहां मैं ही गलत हूं।
तो यही है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग का सबसे पहला पिलर है क्वेश्चन करना, व्हाई। और यही सबसे जरूरी है। आप अगर सही क्वेश्चन करोगे तो आपको आंसर भी सही मिलेंगे। मैंने बोला कि हिस्ट्री पॉजिटिव भी है। हिस्ट्री अगर पॉजिटिव है तो क्यों है? हिस्ट्री पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि हिस्ट्री इज फुल ऑफ मैसेजेस। हिस्ट्री हमें बताती है कि हमें वॉर नहीं करनी चाहिए बिकॉज देयर इज नो बेनिफिट। इसलिए तुम देखोगे जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी है, यूएन बना है, पूरा सिस्टम बना है यूएन का, ये क्या कर रहे हैं? पीस प्रमोट कर रहे हैं। दे आर शेडिंग वॉर। जब ये इंटरनेशनल ऑर्डर बना था, यूएन का यूएन सिस्टम बना था, तो अगर आप उनकी स्पीचेस को देखेंगे या और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए मतलब बहुत फेवर करते हैं कि नाउ डिस्प्यूट्स विल बी डिसाइडेड नॉट ऑन द वॉर फील्ड्स बट ऑन द टेबल। शांति से बात करेंगे। इंडिया चाइना बॉर्डर के डिस्प्यूट को रेजोल्यूशन कर रहा है पीस के थ्रू। इसलिए हिस्ट्री मैसेजेस भी देती है। इसलिए हिस्ट्री बताती है कि वॉर के क्या नुकसान है, कितना ह्यूमन लॉस हुआ है उससे। तो इस तरह से हम हिस्ट्री को प्रोसेस करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को, हर टॉपिक को, हड़प्पा से लेके पूरे, पहले हम 3 हिस्सों में करना है इसको, एंशियंट में, मिडिवल और मॉडर्न में। और साथ में मैं आपको कंटेम्परेरी टाइम पीरियड से एग्जांपल देता चलूंगा। हम हर क्वेश्चन करेंगे। क्या हड़प्पा के बाद डायरेक्ट वैदिक सिविलाइजेशन आ गई? इसके बीच में क्या था? उससे पहले क्या था? हड़प्पा एकदम अर्बन सिविलाइजेशन थी और वो कैसे वैदिक पीरियड में रूरल हो गई है, फिर अर्बन हो गई है। मॉडर्न टाइम पीरियड से आगे को तो अगर देखेंगे तो फिर आगे देखते हैं, फिर डिक्लाइन हो जाता है। क्यों हो रहा है ये डिक्लाइन? हड़प्पा से पहले क्या था? स्टोन एज। पर यू नेवर आस्क्ड कि स्टोन एज से पहले क्या था। मैं मानता हूं 98% लोगों ने कभी ये अपनी जिंदगी में क्वेश्चन नहीं किया होगा खुद से जानने के लिए भी कि स्टोन एज से पहले क्या था इस दुनिया में, लाइफ कहां से आई, कैसे ह्यूमन ने इस धरती को कॉलोनाइज कर लिया। तो इसी तरह से हम हिस्ट्री में डिबेटों के साथ आगे बढ़ेंगे। जहां रिलेवेंट होगा मैं आपको उसके जवाब दे दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपके हर सवाल की आंसर करूं। हिस्ट्री में आप देखो व्हाट तो बुक से पढ़ लेंगे, वाई पार्ट में यहां करा दूंगा, आपके लिंक बनवा दूंगा, बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी। वो कैसे लिंकेजेस है? हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन टाइम पीरियड में केवल साइट्स पढ़नी है। वो साइट्स ही हैं जो आपको बताती हैं कि कैसे ट्रांजिशन हुआ, कैसे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। क्या एग्रीकल्चर के मेरे, आप ये बताओ आप में से कितने लोगों ने एग्रीकल्चर के बेनिफिट कभी जानने की कोशिश की है? बस ये तो पता है एग्रीकल्चर आ गया न्यूलिथिक टाइम पीरियड में या उससे बाद में। समझ रहे हो? तो इसी तरह से हम अपनी अप्रोच रखेंगे। कैसे एम्पायर बने? वैदिक पीरियड रूरल सिविलाइजेशन थी और रूरल सिविलाइजेशन के बाद जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक बेस था उसने कैसे मौर्यन एम्पायर, मौर्यन टाइम पीरियड में एम्पायर बना दिए। फिर आप टाइटल्स भी देखते हो, चक्रवर्ती, सम्राट, किंग्स। अशोका के ऊपर डिबेट्स हैं। कौन है अशोका? कौन है? किंग था, मोनार्क था, एक सेंट था, या सेंट के रूप में मॉन्क था? कौन था अशोका? और धम्मा पॉलिसी के ऊपर उसके डिबेट्स हैं। क्यों लेके आया धम्मा पॉलिसी अशोका? लैंग्वेजेस तो ये इलाइट लैंग्वेजेस थी। कहने को तो कहते हैं कि प्राकृत और ब्राह्मी खारतोसी स्क्रिप्ट में उसने अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए।
मोस्टली उसके इंस्क्रिप्शन जो हैं वो ब्राह्मी और प्राकृत लैंग्वेजेस में है। फिर जो कॉमन लोग थे वो क्या बोलते थे? क्या वो समझ पाते थे जो इसके इतने इंस्क्रिप्शन हैं? क्या उनका बेनिफिट रहा? तो यही सारे क्वेश्चन हम वाई पार्ट में करेंगे। वैदिक पीरियड आया तो क्यों आया? ऋग्वेद कैसे लिखे गए? क्या मतलब है ऋग्वेद का? क्या ऋग्वेद सच में सच्चे हैं? क्योंकि कहने को तो कहते हैं कि श्रुति परंपरा भारत में थी, ऋग्वेद पहले गॉड से माउथ के थ्रू लोगों ने सुने, और सुन के पहले वो ऐसे ही मेमोराइज करके याद रखते थे। तो इतना डेटा क्या ह्यूमनली पॉसिबल है याद करना? तो वाई के साथ साथ हम नए सवाल भी जनरेट करेंगे, और यही मेरा लक्ष्य होगा कि आप कुछ अच्छा सीखें इन वीडियो से। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको अब लेक्चर में मिलूंगा।